Hello, students. So, in today's class, we are going to start with a new chapter of class 4 maths, that is the cleanest village. Okay, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to basically study about little bit of money analysis करेंगे. ठीक है? Now, यहाँ पर अगर हम देखें, so what is happening here? Daisy and Louis, they are class 4 students and they are studying in Shillong. Okay? तो एक स्कूल ट्रिप के लिए जो है उनके स्कूल ने एक बैनर निकाला है विच सेज दैट द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज़ 500 रुपीज़ पर चाइल्ड. अब डेजी एंड लुई नाउ दे आर गोइंग फॉर द ट्रिप. सो in order to go for the trip they are planning to keep some things alongside with them. तो वो कहाँ गई है? मार्केट. they are going to buy certain things. ठीक है, तो उन्होंने जो चीज़ें खरीदी हैं द लिस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन गिवन हियर एज पर केजी. तो अगर हम पिछली वाली स्लाइड को अगर हम देखें तो यहाँ पर हर चीज़ का एक प्राइस मेंशन है. बीन्स कितने की है, रेडिश, अनियन, पोटैटो, यैम, सपोटा, पपाया, बनाना, कस्टर्ड, एप्पल, एंड द कॉस्ट इज़ मेंशन फॉर 1 kg, यानी कि 1 किलो कितने का है. कस्टर्ड इज़ फॉर 45, बीन्स इज़ फॉर 95 एंड सो ऑन. तो 2 kg of beans will be how much? 1 kg of custard apple and 1 kg of sapota will be how much? So this you will have to see and write. ठीक है, see from the last page and write. First example I am solving here. Beans का प्राइस क्या था? Beans का प्राइस is 95. Okay, beans का price is 95. So if 1 kg beans is of 95 rupees, so 2 kg is going to be something which you have studied. It will be how much? 190 kg, 190 rupees. Okay, so similarly you have to solve all these parts. Their mother buys things for 163 rupees. What might she have bought? There is more than one possibility. तो अब Daisy and Louis, their mother bought for total how much? She bought total for 163 rupees. तो 163 rupees में उन्होंने क्या क्या खरीदा? That you have to write here. ठीक है. Now, let us see what is being given here. If the cost is 185 rupees, अगर किसी सामान जो मैंने ख़रीदा है अगर उसका प्राइस 185 रुपीज़ है और मैंने 200 रुपये दिए हैं तो मुझे शॉपकीपर कितना लौटाएगा? शॉपकीपर इज़ गोइंग टू गिव मी हाउ मच मनी? ही विल टेक 200, उसमें से 185 माइनस करेगा एंड विल गिव मी द बैलेंस अमाउंट. यहाँ पर बैलेंस अमाउंट कितना है? 15. सेकेंड, अगर मैंने 200 रुपये अगर मैंने दिए और मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला तो मतलब मेरा जो सामान था वो कितने का था? 200 का ही था. अगर मैंने 435 अगर मैंने 435 का अगर मैंने सामान ख़रीदा एंड इन टर्न इफ आई पेड 500 रुपीज़ तो शॉपकीपर मुझसे 500 रुपये लेगा, 435 रुपीज़ काटेगा एंड ही विल गिव मी द बैलेंस. तो बैलेंस कितना यहाँ पर आएगा? 65. Similarly, the same thing you have to do here in all the questions. ठीक है. Clear? Okay. अब यहाँ पे any example you can write कि अगर मैंने जैसे 430 का मैंने सामान ख़रीदा, I handed over 500 rupees, मैंने 430 का सामान लिया और मैंने 500 रुपये मैंने दुकानदार को दिए. So now the owner is going to return how much? 70 rupees to me. Clear? Any doubt, any confusion? Okay. Now, if we see this, 4 naughty kids on a walk come across a fresh orange crop. They ask the farmer the price of one. The farmer says each cost 21 rupees.
2 oranges each they buy. The farmer gives them with a sigh. They all reach into their jackets to take out notes from their pockets. Each one pays a different note. Krishna a 50 and Sudama 100, Mala 200 and Neela a 500 rupees. तो 4 बच्चे थे, वो ऑरेंज खरीदने गए. ऑरेंज कैसे थे? Let us take it down here. 1 orange priced at 21 rupees. ठीक है. 2 orange each child buys. 2 ऑरेंज अगर बच्चे खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 2 × 41 दैट इज़ इक्वल टू 42 रुपीज़. पहले बच्चे ने 50 रुपये की नोट दी. किसने? कृष्णा के 50 रुपीज़ नोट. अब यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ प्राइस. इफ़ कृष्णा पेड 50 और 42 रुपीज़ के ऑरेंजेस थे, तो हाउ मच विल द शॉपकीपर रिटर्न? 8 रुपीज़. 50 minus 42. Sudama paid 100. So now how much the shopkeeper is going to return? 42 rupees के oranges थे, so 58 rupees will be returned. 100 minus 42. माला handed over 200 rupees note. माला ने 200 रुपये की नोट दी. कितने के oranges थे? 42 रुपीज़ के. तो how much now the shopkeeper will return? 158. And Neela paid how much? 500 rupees. How much will she get? 458 rupees as the balance. Clear? ये आप लोगों को करना आया? Okay. Okay. So now what is given here? यहाँ पर क्या given है? We all can see. Now this is a number play game. ठीक है. यहाँ पर हमें क्या करना है? We have to arrange it in such a way that each side is going to give me 9. यहाँ पर हमें वो सारे नंबर्स ऐड करने हैं तीनों तरफ में कि इस तरफ का भी सम 9 आए, इस तरफ का भी सम 9 आए और इस तरफ का भी सम 9 आए. तो देखते हैं हमें कौन से नंबर्स यहाँ पर ऐड करने हैं. लेट अस सी थ्रू इट. ओके. तो यहाँ पर अगर 5 है और मुझे अगर 9 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 ऐड कर देती हूँ. इट विल बी 8 and here I can get 1. तो 3 + 5 + 1 it is giving me 9. चलो अब इस तरफ देख लेते हैं. यहाँ मेरे पास 3 है. ठीक है. अब अगर मैंने 4 ऐड किया तो मुझे 7 मिल गया, और अगर मैंने 2 और ऐड किया तो मुझे 9 मिल गया. मतलब 2 + 4 + 3 is also going to give me 9. और यहाँ पर 2 + 6 + 1 is also giving me 9. तो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन. अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ हमें करनी है, बट यहाँ पर हमें सम क्या बनाना है? 10 बनाना है. वॉट वी हैव टू मेक द सम हियर 10. तो एक तरफ का करके देखते हैं. 5 2 3 डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है. 6 और 1 डाल करके देखते हैं. तो 6 + 1 7, 7 + 3 10. यहाँ पर भी 5 + 2 7, 7 + 3 10. अब यहाँ पर 5 है 1 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा. सो 5 + 1 + 4 is going to give me again 10. ठीक है. अब इसी तरीके से हमें क्या करना है? इसी तरीके से we have to make 12 on each side and we have to make 13 on each side. This is your homework. You have to do it and check that whether you are getting 12 or not. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है. Now here we have to add up. अब ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन जो है, हम जब पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जिसमें हम थाउजेंड्स अराउंड अस पढ़ रहे थे, थाउजेंड्स अराउंड अस के चैप्टर में हमने ब्लॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये वंस के ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है, टेंस के ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है. हंड्रेड्स, टेंस, वंस, थाउजेंड्स तक का मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ वी आर राइटिंग दिस. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हाउ मेनी टीचर्स आर अकम्पनिंग द चिल्ड्रन. यहाँ पर सिंस दे आर गोइंग टू द ट्रिप, तो यहाँ पर क्या होगा? कितनी टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ जा रही हैं. तो यहाँ पर वन साइड इज़ 24 + 28. तो 24 + 28 हमने कैसे किया? 24 और 28 वंस को वंस के नीचे लिखना है और टेंस के डिजिट को टेंस के डिजिट के नीचे लिखना है. हाउ? लेट मी टेल यू वंस अगेन. अगर मेरे पास 24 और 28 मुझे लिखा है ऐड करने को, तो मैं कैसे ऐड करूँगी?
सबसे पहले ऊपर लिखो टेंस और वंस, जो वंस है उसके ऊपर वंस लिखो, जो सेकंड पोजीशन पर है उसके ऊपर टेंस लिखो। अब टेंस के साथ हम टेंस को ऐड करते हैं और वंस के साथ हम वंस को ऐड करते हैं। तो 24 लिखा प्लस मैंने 28 कर दिया। अब देखो 4 और 8 दोनों वंस की पोजीशन पर था। अब 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। तो मैंने 2 लिया और 1 में कहाँ लिखूँगी, टेंस के ऊपर कैरी ओवर। ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी थाउजेंड्स अराउंड अस, तो जो हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि 10 टेंस अगर है तो वो क्या बनाते हैं 100, 10 100 है तो वो क्या बना रहे थे 1000। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जब मैं एडिशन शो कर रही हूँ तो मैं उसको क्या कहाँ लेकर के जाऊँगी, कैरी में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैरी। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज कैरी। ठीक है, तो 1 मेरा कैरी हो गया। अब मैं टेंस वाले को ऐड करती हूँ। सो 2 + 2 = 4 एंड +1 5। तो टोटल कितनी टीचर्स अकम्पनी कर रही हैं बच्चों को, 52 टीचर्स अकम्पनी। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो अगेन नाउ वी हैव टू ऐड इट। अब टीचर्स तो हमने निकाल लिए, 52 टीचर्स हैं। अब बच्चे कितने जा रहे हैं, लेट्स कैलकुलेट। 438। अगेन वंस के डिजिट के नीचे वंस का लिखना है, टेंस के नीचे टेंस का और 100 के नीचे 100 का। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करके हमने यहाँ पर 3 डिजिट को भी लिख लिया। अब देखो 8 + 6 कितना होता है, 8 + 6 मैम 14 होता है। तो मैंने 4 लिखा, 1 कैरी मैंने आपको अभी सिखाया। अभी जो मैंने 1 कैरी किया है, वंस में जो 2 डिजिट नंबर आएगा उसका जो लेफ़्ट हैंड साइड का नंबर है वो ऊपर चला गया टेंस के पोजीशन पे। टेंस में जो नंबर कैरी होकर के आएगा वो जाएगा हंड्रेड्स पे, और ये ऐसे आगे चलता रहेगा। सो अब ये कितना हो गया, 3 + 7 10 + 1 11। अब ये देखो ये टेंस का कैरी था, इसको मैं क्या लिखती हूँ 11 टेंस। 11 टेंस का मतलब क्या होता है 100 + 110। वही यहाँ पर आया, 1 एक यहाँ गया, एक 1 यहाँ गया। अब 4 + 4 8 + 1 9। तो आंसर क्या आ गया, 914 चिल्ड्रन आर अकम्पनिंग देम। क्लियर। मैं आपको इस पे आगे और क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेजी एंड लुई एट 1 लार्ज पीस ऑफ पूसो फॉर 38 रुपीज़। दे लाइक इट अ लॉट एंड बॉट अनदर सेम फॉर दी प्राइस 16 रुपीज़। हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन पूसो। तो अब उन्होंने एक पूसो कितने का लिया, 38 का। अब उन्हें पसंद आया तो उन्होंने दूसरा भी ले लिया, कितने का 16 का। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 6 14, 1 कैरी 54। और 54 में टेंस की पोजीशन पर क्या लिखा है और वंस की पोजीशन पर क्या लिखा है। तो मैम टेंस की पोजीशन पे 5 लिखा और वंस की पोजीशन पे 4 लिखा है, यानी कि मेरे पास कितना है 5 टेंस और 4 वंस। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इफ़ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नाउ इस बॉक्स में भी हमको फिलअप कर देना है 38 16 1 कैरी। ठीक है, अब मैं आपको अगर एक अलग और क्वेश्चन दे दूँ खुद से आपको ऐड करने के लिए, मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको एज अ होमवर्क ऐड करके मुझे आंसर कमेंट्स में बताना है। 38 + 16 you have to add and leave the answer. This is the first question. Second question is 330 + 100. You have to solve it and leave the answer in the comments. And the third is 273 + 140. इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट, Daisy and Louis had collected 185 in their piggy bank. Their mother gave them 125 more for the trip. How much money did they take for the trip? अब 185 रुपीज़ उनके पास थे, 185 रुपीज़ उन्होंने सेव करके रखे थे। अब उनकी मम्मा ने कितना दे दिया 125 मोर। तो अब टोटल उनके पास कितने पैसे हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 2 11, अगेन 1 कैरी। सो दिस इज गोइंग टू बी 310। यहाँ पर आओ फिलअप करते हैं। सो वी हैव 1 8
5 and we have 125. तो कितना they have 310. You have to solve it here. 1 8 5 125 0 1. क्लियर? दिस इज़ वेरी सिंपल. एडिशन है, 2 डिजिट और 3 डिजिट का एडिशन कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं. दिस यू विल ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन. बहुत सिंपल है. आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है. बॉयज़ कितने हैं, तबला प्लेयर 78. सिंगर्स कितने हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 532 + 78. Pause it now and check the answer. 2 + 8 10. Then this is going to be 610. So total कितने बॉयज़ हैं, 610. फिर देखो कितने गर्ल सिंगर्स हैं, 346 + 95. 2 digit addition with 3 digit. So 6 + 5 is 11. 1 carry on tens. 1 + 4 5. 5 + 9 14. 4 1 carry on the hundreds position. 3 + 1 4. So how many girls are there? 441 girls are there. Now total how many tabla players are there? So total are how many? See, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं. 8 + 5 कितना होता है, 13. सो 3 यहाँ 1 यहाँ. 7 + 1 is 8. 8 + 9 is 17. तो कितने हो जाएंगे, 173. लेट्स चेक हियर कितने टोटल सिंगर्स आर देयर. 6 + 2 8. 3 + 4 7 and again 8. So 878 are there. How many are there? 878. तो कितने तबला प्लेयर्स और कितने सिंगर्स हैं. अब टोटल हमारे पास जितने आएंगे, यू विल राइट द आंसर हियर. नाउ 15 more girls join the music school and they want to learn to play the tabla. How many girls play the tabla now? अब हमारे पास टोटल कितनी गर्ल्स तबला प्ले करती हैं, 95. ओके, सो टोटल वी हैव 95 गर्ल्स हु प्ले तबला. अब क्या कह रहे हैं, सो 15 मोर आर देयर. 15 और नई लड़कियां आ गई तबला सीखने. सो नाउ हाउ मेनी तबला प्लेयर्स वी हैव, 5 + 5 10. 1 कैरी टू द 10th पोजिशन. 1 + 9 10 and 11. सो टोटल वी हैव 110 गर्ल्स हु प्ले tabla. Clear? Now you will have to add these numbers in your notebook.